I've already covered single inheritance, multiple inheritance. The third one is multi-level inheritance, right? So today we have to start hybrid inheritance. Hybrid. So hybrid inheritance means what? Hybrid का मतलब क्या होगा? Hybrid means जिसमें सारे इनहेरिटेंस एक साथ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. Like we can implement single inheritance, multiple inheritance, or multi-level inheritance also. So that is called hybrid. So we have to create a structure in which we can implement our hybrid inheritance, right? So that is called diamond structure. We have to create diamond shape. So how we can create this diamond shape to implement multi-level inheritance? Let's see. Suppose if we are having a class A, right? And here A class is having a child B, and A class is also having a child C. तो ये कौन सा इनहेरिटेंस कहलाएगा? सर स्क्रीन शो. जस्ट so if we are having a class A and this A class is having two child B and C, so ये जो इनहेरिटेंस है वो किस टाइप का इनहेरिटेंस है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगल है, मल्टीपल है, मल्टी लेवल है, क्या है ये इनहेरिटेंस? क्या है ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको दिखाया है? सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस. आपने ये बोला ना ए की प्रॉपर्टी बी और सी यूज कर रहे हैं. हाँ तो सिंगल है. So A is a parent and B and C is a child, right? So how many parents are available here? One. So this one is an example of single inheritance. Now here I'll add one more class, and the class is D, suppose. So for D at B, C and D, which type of inheritance we are using here for B, C and D? Multiple. Multiple inheritance. Yes, sir. So in this scenario we are using single inheritance. In this case we are using multiple inheritance. If we are talking about A, B and D और D, B और A, कौन सा इनहेरिटेंस होगा इसमें? मल्टी लेवल. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. Yes, sir. If you are talking about D, C and A, multi level inheritance. Yes, sir. So now we are able to use all the inheritance inside this architecture, inside this structure. That is called diamond shape. Single inheritance, multiple inheritance and multi-level inheritance also. That's why it's called, such type of a structure is called hybrid. This one, if we are creating a such type of a structure, it means this structure is called hybrid inheritance, right? It's only happens when we are using multiple inheritance. अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते, काम नहीं करेगा.
बिकॉज डी को चाहिए 2 पेरेंट, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होना चाहिए. So that's why in Java and others programming language, अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखोगे तो डायरेक्ट क्लास के साथ अवेलेबल नहीं है. But in Python we are using multiple inheritance. That's why we can create this diamond shape. And this one is the example of hybrid inheritance, right? So let's see how we can implement this hybrid inheritance and what's the problems which we are facing in hybrid inheritance. So previous class में हम लोगों ने ये देखा था, right? And this one is the example of multi-level inheritance. Now I want to use hybrid inheritance. So let's see how we can implement hybrid inheritance here. So hybrid inheritance को कैसे implement करेंगे देखते हैं. हाइब्रिड के लिए क्या करना होगा? तो मुझे सिंगल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर भी चाहिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर भी चाहिए. Suppose if we are creating a class A and here we are creating init, just I'll print a message. Right, I'm creating one more class B. Here also I'll use init method. B class init method. And here I am creating one more class C. C class init method called. And here I am creating one more class B. So now we are having 4 classes. D class init method. How we can implement hybrid inheritance? मेरे पास ये 4 classes है A, B, C and D. So what I want to do, for this B and C, I want to create a single parent, right? For this B and C, I want to create a single parent, and the parent would be what? A.
So this one is an example of what? Single inheritance. B and C is having a single parent. So this one is an example of single inheritance. Now I want to use multiple inheritance. So this D class is having two parents, B and C. So for this D class, we are using multiple inheritance. For this B and C class, we are using single inheritance. And similarly, if I'll switch through D, B and A, that would be multi-level inheritance. So what's the advantage which we are getting here? क्या आपको फायदा मिलेगा? ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा इससे एडवांटेज क्या मिलेगा? एडवांटेज ये मिलेगा कि एक ही प्रोग्राम में अकॉर्डिंग टू योर ऑन रिक्वायरमेंट वी कैन यूज और वी कैन इम्प्लीमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. If I want to implement single inheritance, we can create an object of B or C. B और C का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? Single inheritance कॉल होगा, right? Here, if I'll create object of B, तो B क्या एक्सेस कर पाएगा? B एक्सेस कर पाएगा सिर्फ A के इंफॉर्मेशन को. क्या B C और D के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा? B को C और D का इंफॉर्मेशन मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा. B को सिर्फ क्या मिल रहा है यहाँ? A का इंफॉर्मेशन. सिंगल इनहेरिटेंस. When I am creating an object of C, Pj is equal to C. C को क्या B का इंफॉर्मेशन मिलेगा या D का इंफॉर्मेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा. C can only access the information from A. This one is also an example of single inheritance, right? If I'll create an object of D, then what happens in this case? If I am creating an object of D, तो इसमें क्या होगा? डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होगा? आप ये बताइए. डी क्या एक्सेस कर पाएगा आपको? बी सी क्लास बी और सी. बी और सी दोनों एक्सेस कर लेगा. ओके, लेट्स सी. आप बोल रहे हो कि अगर हम डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी और सी दोनों एक्सेस होगा. तो मैं क्या करता हूं, यहाँ एक मेथड बनाता हूं. यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक समझ में आ रहा है सबको कि हमने सिर्फ क्लास बनाया, अभी कुछ भी नहीं किया है. अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन बनाता हूं बी और सी में. अगर डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी और सी का इंफॉर्मेशन डी को मिल जाएगा, राइट? डी को वो इंफॉर्मेशन बनाने की जरूरत नहीं होगी. So when I am creating a method get info here, and just I'll write a message B class get info. ठीक है, तो B क्लास में मैंने बना दिया एक मेथड जिसका नाम है गेट इन्फो. तो D का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो D चाइल्ड है B का, ये गेट इन्फो को एक्सेस कर पाएगा या नहीं? कर लेगा सर. ओके, गेट इन्फो कॉल हो गया. अब एक C क्लास में मेथड बनाते हैं. C क्लास में एक मेथड बनाते हैं,
and just I'll write say hello, कोई मेथड है, ये C क्लास के पास है, just I'll write print hello C, and using this obj D class का ऑब्जेक्ट, दोनों को भी कमेंट कर देते हैं, using D class object I am trying to access say hello, right? So I'll write obj dot say hello. तो D जो क्लास है, ये इसके दो पेरेंट हैं B and C, and we are trying to access the information from B and C. What happens in this case? Let's see. D class init method called, because we are creating an object of D. B class get info called, and hello C is also called. So D class is able to access information from both the parent, right? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट मीन्स यहां पे क्या अप्लाई हो रहा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस. D को दो पेरेंट का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, गेट इन्फो का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और से हेलो एक मेथड है उसका भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है. यानी दोनों पेरेंट का मेथड कॉल हो गया, राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आएगा जब हम लोग यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे. फंक्शन के केस में तो प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन कॉल हो जा रहा है. या प्रॉब्लम कब आएगा? जब इस यहां पे भी क्या मिलेगा? गेट इन्फो. सो बोथ द पेरेंट इज हैविंग द सेम मेथड. जब गेट इन्फो मेथड नहीं था, कोई और मेथड था, तो जिसको प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये कॉल हो गया, राइट? But when we are using multiple inheritance and both the parent class is having same method, now what happens in this case? अब क्या होगा? क्या कॉल होगा यहाँ पे? या कुछ भी कॉल नहीं होगा? क्या लगता है आपको? ये जो चाइल्ड है, क्या दोनों क्लास के मेथड को एक्सेस कर पाएगा? अभी तो कर रहा था. से हेलो मेथड बनाए थे तो कर रहा था, लेकिन अगर दोनों क्लास में सेम मेथड है तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको काफी डिस्कस किया है. सर रिपीट करना, नेटवर्क इश्यू होगा सर. एक मिनट रिपीट करना थोड़ा सा. क्या पूछ रहे हो आप? D class want to access जी. the functionality of B and C, and both Yes, sir. B and C class is having same method. दोनों पेरेंट के पास एक ही मेथड है, मेथड नेम सेम है. So when we are using here get info, what happens in this case? B का उठाएगा वो. B का उठाएगा. हाँ. Okay, let's see. किसका उठाया? B का. बी का. फिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेफ्ट टू राइट प्रायोरिटी सर. सबसे पहले पेरेंट B आ रहा है ना. बी आ रहा है ना. ओके, तो यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस अप्लाई हो रहा है? अभी के सिंगल ही केस हुआ में कौन सा इनहेरिटेंस? सिंगल हो रहा है. अभी के हिसाब से सिंगल ही है. सिंगल ही है सर अभी तो. ओके, चलो एक और काम करते हैं. अब ए क्लास में मैं एक मेथड बनाता हूं.
डेफ, यहां पे लिखते हैं से हेलो। And here I'll write print hello t. Now what happens in this case if I'll call say hello method? Say hello method किसके पास है? say hello ये जो मेथड है वो किसके पास है? ए क्लास के पास। डी क्लास से ए क्लास का कोई रिलेशन है? डी क्लास का ए क्लास से कोई रिलेशन है या नहीं इस कोड में? है सर। तो वो रिलेशन कैसे बन रहा है? The parent of D is B and the parent of B is A. So when a D class is calling the method of a grandparent, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ? कौन सा इनहेरिटेंस अप्लाई हुआ? मल्टी लेवल। Multi-level inheritance. D is able to access the information of A. लेकिन किसके थ्रू एक्सेस होगा ये? से हेलो को कौन कॉल करेगा? क्योंकि यहाँ पे इसके पास तो दो पेरेंट है और इन दोनों पेरेंट का पेरेंट है ए, राइट? तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो से हेलो मेथड है वो बी क्लास के थ्रू कॉल हो रहा है या सी क्लास के थ्रू कॉल हो रहा है? बी के थ्रू सर। डी को ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिलेगा? बी के थ्रू। बिकॉज दिस वन इज द डिफॉल्ट बिहेवियर, उसको फर्स्ट पेरेंट जो मिल रहा है उस पर ये काम कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया दिस वन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टी लेवल। When we are trying to access get info and get info method is available inside B and C both, लेकिन एक्सेस जो हो रहा है डी के पास वो सिर्फ किसका हो रहा है? बी का। तो अभी जो रिलेशनशिप है इसमें ये सिंगल इनहेरिटेंस है क्योंकि सी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ, राइट? तो ये जो गेट इन्फो मेथड कॉल होगा वो किसका कॉल होगा? बी क्लास गेट इन्फो, राइट? और ये जो कॉल होगा वो किसका मेथड होगा? ए क्लास से हेलो। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है अभी? अब मुझे सी को रोल में लेके आना है। सी बिल्कुल एक्टिव नहीं है, इसका कोई काम ही नजर नहीं आ रहा है। तो अगर डी चाइल्ड को सी पेरेंट के थ्रू काम करना है तो कैसे करेगा ये? सर हम सी डॉट लगा सकते हैं। Okay, now I want to call say hello method through C. B के थ्रू नहीं कॉल करना है। say hello method चाहिए लेकिन किसके थ्रू चाहिए? C के थ्रू। तो कैसे होगा? अभी say hello method कॉल हो रहा है लेकिन किसके थ्रू कॉल हो रहा है? B के थ्रू कॉल हो रहा है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि बी के थ्रू कॉल हो रहा है? कुछ पता चल रहा है यहाँ? ये जो मेथड कॉल हुआ ये बी के थ्रू ही कॉल हो रहा है, इसका क्या सबूत है?
हेलो ए आ रहा है ना सर आउटपुट में, जो ए में लिखा हुआ। हाँ, तो ये तो सी के थ्रू भी कॉल करेंगे तो हेलो यही आएगा ना। पर सर सी इन्वॉल्व ही नहीं है अभी। तो ये तो हम लोग बोल रहे हैं, आपका प्रोग्राम बोल रहा है ये चीज। प्रोग्राम में कहीं आपको पता चल रहा है कि ये जो हेलो ए मेथड है वो किसके थ्रू कॉल हो रहा है, बी के थ्रू हो रहा है कि सी के थ्रू हो रहा है? ये प्रोग्राम को बताना चाहिए। Yes. ये प्रोग्राम बता रहा है, अभी कैसे बता रहा है? इस ऑब्जेक्ट के पास रेफरेंस किस पैरेंट का है ये कैसे पता चल रहा है? व्हेन वी आर कॉलिंग दिस गेट इन्फो, क्योंकि गेट इन्फो जो मेथड है ये बी के पास भी है और सी के पास भी है, दोनों जगह है ना। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को किसका रेफरेंस मिला हुआ है? इस ऑब्जेक्ट के पास रेफरेंस अभी किसका है? व्हेन वी आर कॉलिंग गेट इन्फो, तो किसका गेट इन्फो कॉल हुआ? बी क्लास का गेट इन्फो कॉल हुआ, सी क्लास का तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या है कि सी क्लास का कोई भी रेफरेंस इस ओबीजे के पास अभी नहीं है। ये ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पेरेंट का रेफरेंस रखता है। दैट्स द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। बट इफ वी वांट टू एक्सेस डिफरेंट पेरेंट्स, फर्स्ट नहीं चाहिए मुझे, कोई और चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज आई वांट टू कॉल द गेट इन्फो मेथड ऑफ सी क्लास, इसका गेट इन्फो कॉल करना है, कैसे करेंगे? कैसे कॉल होगा? सी क्लास का रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट को कैसे मिलेगा? अभी तो नहीं मिल रहा है ना, अभी तो बी क्लास का रेफरेंस ही है इसके पास। और मल्टीपल इनहेरिटेंस मींस व्हाट? मल्टीपल पेरेंट्स। अभी तो सिर्फ दो ही है, हम यहां जितना चाहे पेरेंट रख सकते हैं। So how we can call the C class getInfo method? तो चैलेंज क्या है? इस ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट रेफरेंस भी मिल रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मुझे C का रेफरेंस भी देना है, तो कैसे देंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है ना ये, कल हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस कल या सर इसमें सी डॉट से अप्लाई नहीं करेंगे डी हम्म? क्लास में? डी क्लास में सी डॉट जो हम यूज कर रहे थे कहाँ पे अप्लाई करेंगे? यहाँ क्लास डी में। यस सर। डी क्लास में। जी। चलो, आप बोल रहे हो कि हम यहाँ एक मेथड बना ले, राइट? यस सर। डेफ गेट इन्फो बना लें, और यहाँ पे लिख दें कि जो इंफॉर्मेशन हम कॉल कर रहे हैं वो सी क्लास का गेट इन्फो सी है, का करना है। ऐसा बोल रहे हैं। यस सर। जी। तो अब तो सिर्फ सी क्लास ही कॉल होगा, अब तो बी कॉल नहीं होगा ना, क्या होगा? क्या लगता है आपको? अब इस सर डी बी को। ऑब्जेक्ट के पास जब हम गेट इन्फो कॉल कर रहे हैं तो रेफरेंस में क्या आ रहा है? सी का गेट इन्फो। सॉरी, सर सेल्फ देखना है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? अब सिर्फ सी कॉल हो रहा है,
देखो सी का सी का कॉल हो रहा है, बी तो गायब हो गया। तो हम एक काम और कर सकते हैं, आप बोलोगे कि मैं यहाँ लिख दूं गेट सी बी का गेट बी। इन्फो। यस सर। तो अब तो दोनों कॉल हो रहा है, मुझे दोनों नहीं चाहिए, मुझे अपने अकॉर्डिंग काम करना है। सर सी में ए का रेफरेंस बना देंगे। अब क्या हो रहा है, अब दोनों कॉल हो रहा है, लेकिन मुझे मेरे अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को जब जरूरत हो वो बी का गेट इन्फो यूज कर ले, जब इसको जरूरत हो तो सी का गेट इन्फो यूज कर ले। ऐसा तो नहीं हो रहा है अभी? नो सर। या तो दोनों हो रहा है या कोई एक हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया था, लेकिन ये भी रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है क्या? नो सर। ऐसे ये रियलिस्टिक है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही रियलिस्टिक नहीं है। यस दो पेरेंट का कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड में हम सोच ही नहीं सकते। यस सर। तो इसलिए आपके दिमाग में ये समझने में भी प्रॉब्लम आएगा कि हम इसको रियल लाइफ में कैसे समझें। एग्जाम्पल ही नहीं बन रहा है कोई कि एक चाइल्ड है, उसके दो पेरेंट हैं, जब वो चाहे जिस पेरेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ले, तो ये तो काम करेगा, ये काम करेगा। इसमें जो गेट इन्फो है जो कॉल होगा, तो ये सी वाले को भी कॉल कर देगा, डी वाले को भी कॉल कर, बी वाले को भी कॉल कर देगा, दोनों कॉल हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, और ये हम लोग प्रीवियस क्लास में सॉल्व भी किए थे। लेकिन क्या इसको और डायनेमिक बनाया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग काम करे? ये ऑब्जेक्ट चाहे तो बी का गेट इन्फो कॉल करे, ये ऑब्जेक्ट चाहे तो सी का गेट इन्फो कॉल करे अकॉर्डिंग टू ऑन रिक्वायरमेंट। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? कैन बी राइट हियर ओबीजे डॉट ए, ऐसा नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम यहां पे बोले कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, सॉरी ए तो मिलेगा ही नहीं इस ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट क्या मिलेगा, बी और सी। तो क्या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट बी डॉट गेट इन्फो, या ओबीजे डॉट सी डॉट गेट इन्फो? ये भी एक पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहां तो ये हो रहा है, राइट? बी क्लास में आप ये लिख पा रहे हो कि सी का गेट इन्फो कॉल होगा और बी का गेट इन्फो कॉल होगा, दोनों का कॉल होगा। क्या इसको हम यहां पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं जहां ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है? क्या ओबीजे के अंदर बी है या इस ओबीजे के अंदर सी है? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको कि मैंने क्या यहां लिखने की कोशिश की है? हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो डी ऑब्जेक्ट है, डी जो ऑब्जेक्ट है उसमें बी है क्लास, और उस बी क्लास के अंदर मेथड है गेट इन्फो। क्या ये स्ट्रक्चर वैलिड है? लेट्स सी, पहले हम लोग इसको देखते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकता है? लेट्स सी, डी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बी, बोला है ना? चाइल्ड यहां पे क्लास है डी, वो क्लास के इंफॉर्मेशन को तो एक्सेस कर सकता है लेकिन क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता। वी कैनॉट राइट लाइक दिस। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्लास का रेफरेंस नहीं बनेगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं। रेफरेंस नहीं है ऑब्जेक्ट के पास, तो क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट?
बहुत मुश्किल हो गया नहीं। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं ये वाला जो कोड है ये पहले शेयर कर देता हूँ। और एक नए कॉन्सेप्ट पे मैं आता हूं। यहां तक समझ में आ गया है सबको? जो प्रॉब्लम है उसके बारे में अभी नहीं सोचना है, जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया इसको मैं अभी हटा रहा हूं। मैं अगर लिख रहा हूं obj.getInfo तो अभी क्या कॉल होगा, C का getInfo भी कॉल होगा और B का getInfo भी कॉल होगा, यानी वी आर एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम B एंड C, दोनों एक्सेस हो जाएगा। अभी यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोगों ने पहले भी किया है। तो ये एक्सेस हो रहा है, ठीक है, C भी एक्सेस हो रहा है, B भी एक्सेस हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है लेकिन समझना जरूरी है। वी आर क्रिएटिंग अ क्लास A और यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं init, या init का जरूरत नहीं है, init नहीं भी लिखेंगे। मेरे पास यहां पे एक मेथड है, सपोज def hello, कोई मेथड है, just I'll write print hello A, ठीक है। So here I am creating an object of A and when I'll write obj.hello, hello कॉल हो जाएगा। अभी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हेलो कॉल हो जाएगा। देखिए हेलो कॉल हो गया। अब देखिए मैं यहां से सेल्फ को हटा रहा हूं, सेल्फ को हटा दिए। अब क्या होगा, प्रॉब्लम आ रहा है, और प्रॉब्लम क्या है, टाइप एरर। प्रॉब्लम है टाइप एरर। सो टाइप एरर का मतलब ये है कि दिस फंक्शन हेलो इट्स नॉट द टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। ये फंक्शन सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सिंटैक्स सही है, सिंटैक्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो हेलो मेथड है, ये जो हेलो मेथड है इट्स नॉट द टाइप ऑफ ए, यानी ए क्लास का टाइप नहीं है। यानी ए क्लास के अंदर टाइप क्या हो सकता है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। सो दिस हेलो method it's not the part of A, but I don't want to I want to create a method that will be available inside this class, but I want to create method that will not call through this object। क्लास के अंदर होगा लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होना चाहिए। इसी क्लास के अंदर यह मेथड है लेकिन इस क्लास का पार्ट इसको नहीं बनाना है, इसको ग्लोबल बनाना है, कोई भी एक्सेस कर पाए।
तो कैसे करेंगे? So there is the concept of decorator. कॉन्सेप्ट क्या आता है? एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है डेकोरेटर। मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगा डेकोरेटर के बारे में, अभी बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, @स्टैटिक मेथड, बस ये लिखा है @स्टैटिक मेथड। अब इस कोड को रन करते हैं, इस कोड को दोबारा रन करते हैं, लेट्स सी क्या हुआ। ये कॉल हो गया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल हो गया, या विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आप मत बनाओ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। सो हाउ वी कैन कॉल? just we have to write class name, that's it। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a.hello, मैंने लिख दिया a.hello। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है? ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया ना, नहीं, लेकिन ये मेथड कॉल हो रहा है। It means what? This method, it's not the part of this A class। अगर ये A class का मेथड होता तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता। तो अगर आप यहाँ पे सेल्फ लिख देते हो तो क्या होता है? When you are writing here self, it means what? Now this hello method, it's the part of A class। Always you have to call this hello method through ऑब्जेक्ट, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ तो हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड यूज किया @स्टैटिक मेथड। तो ये स्टैटिक मेथड क्या कर रहा है, ये एक ऐसा फंक्शन बना रहा है जो ग्लोबल है, यानी ऑब्जेक्ट बनने से पहले ये फंक्शन इनिशियलाइज हो जा रहा है। देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू इनिशियलाइज दिस फंक्शन। ग्लोबल फंक्शन बन रहा है, तो इस फंक्शन को कॉल होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। सो दैट ग्लोबल फंक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक। C++ में भी ये कॉन्सेप्ट था, स्टैटिक फंक्शन। Even in Java also you will learn static function। So in Python we can use decorator to define a function static। तो जब आप किसी फंक्शन को स्टैटिक डिफाइन कर देते हो तो क्या होता है, that function is global। अब वो फंक्शन इस क्लास का पार्ट नहीं है, यानी इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। जस्ट वी हैव टू राइट a.hello। सिर्फ ये बताना है कि ये फंक्शन किस क्लास में है, रेफरेंस बता दो, ये कॉल हो जाएगा। सो इफ वी वांट टू क्रिएट अ ग्लोबल फंक्शन, इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा प्रीवियस वाला प्रोग्राम था उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, उस प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम यही आ रहा था ना कि जो डी क्लास है वो बाय डिफॉल्ट किसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले रहा था, फर्स्ट पेरेंट। बट इफ यू आर हैविंग मल्टीपल पेरेंट्स, तो मल्टीपल पेरेंट्स के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डी क्लास को नहीं मिल रहा था। तो अगर हम एक ऐसा मेथड बनाएं जो स्टैटिक हो, ठीक है, हर पेरेंट के अंदर ऐसा मेथड जो स्टैटिक है, तो उसको कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर हम इस तरह का मेथड बनाते, सपोज यहाँ पे एक और क्लास बनाए, क्लास बी, इसका पेरेंट है ए, राइट,
और यहाँ पे भी मेथड है हेलो, यहाँ पे भी मेथड है हेलो, लेकिन ये है सेल्फ। देन व्हाट्स द डिफरेंस? क्या दोनों मेथड सेम है? क्या लगता है? बी वाला मेथड हेलो और ए वाला मेथड हेलो, क्या दोनों सेम है? अगर हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, व्हेन आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बी, and I'll call obj dot hello, तो ये कौन सा हेलो मेथड कॉल होगा? बी वाला? सर ए वाला करेगा। ए वाला करेगा? हाँ, इसको अभी कमेंट कर देते हैं। अभी कौन सा मेथड कॉल होगा? यही कॉल होगा ना, स्टैटिक मेथड सबसे पहले क्लास मिल के आता है। स्टैटिक तो मैंने कॉल ही नहीं किया कहीं अभी, मैं तो ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ obj डॉट हेलो। तो हाँ, मतलब ए का हेलो करेगा। ये बाइंडिंग इस ऑब्जेक्ट के साथ अभी बाइंडिंग किसकी है? बी से। इस ऑब्जेक्ट के साथ कौन बाइंड है? कौन इस ऑब्जेक्ट का मेंबर है? ये वाला है या ये वाला? बी वाला मेंबर है ना, बिकॉज यहां पे मैंने क्या लिखा है? सेल्फ। तो इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा हेलो मेथड बाइंड है बाय डिफॉल्ट? दिस वन। तो अगर मैं इसको रन करूंगा यहां पे, लेट्स सी, सॉरी सेलेक्टेड, अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या कॉल हुआ? hello b, because when we are using self it means what? When we are creating an object, तो ऑब्जेक्ट के साथ किसका रेफरेंस क्रिएट हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट के साथ बाइंडिंग किसकी है? तो ये कब क्रिएट होगा? ये इसके पहले ही क्रिएट हो गया है। तो अगर आप b का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो भी ये हेलो मेथड कॉल हो सकता है। कैसे? कैसे कॉल होगा? तो जस्ट आई विल राइट a डॉट हेलो। अब इस a वाले मेथड को किसी रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये जो a वाला मेथड है हेलो, ये किसी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ये ग्लोबल है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई भी फीचर्स इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट कब बनेगा? जब मैं इसको बोल दूं सेल्फ। सेल्फ लिखते ही अब क्या बन गया ये? नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ दिस ए क्लास। तो अगर आप किसी फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं तो दैट फंक्शन इज ग्लोबल, देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू कॉल दैट मेथड। तो वैसा फंक्शन जो आपको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है और जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रूल्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो उस केस में उस फंक्शंस को क्या बना देते हैं हम लोग? स्टैटिक। When we are making a function static, what happens in this case? This function is global. So there is no need to create an object to access this function. Directly we can write a dot hello. अब मान लो इस हेलो के अंदर मुझे a क्लास का हेलो कॉल करना है, तो क्या लिखेंगे आप? ये मेथड क्या है? स्टैटिक है ना, तो इसमें इनहेरिटेंस का कोई रूल फॉलो हो रहा है?
इस बी क्लास को क्या ए क्लास का हेलो मेथड मिलेगा? इनहेरिटेंस अप्लाई होगा इस पे? व्हाट यू थिंक? बी क्लास का हेलो तो कॉल हो रहा है, बी क्लास में हेलो है, ये कॉल हो रहा है। लेकिन अगर आप बी क्लास के अंदर ए क्लास को पेरेंट बना रहे हो तो क्या ए क्लास का स्टैटिक मेथड बी क्लास में इनहेरिट होगा? क्या लगता है आपको? ये इसकी वजह से होगा, नहीं होगा, बिकॉज स्टैटिक मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। दिस मेथड इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ए क्लास। इसका मेमोरी कब क्रिएट हो रहा है? ऑब्जेक्ट बनने से पहले। तो फंक्शन जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो फंक्शन कॉल करने का सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले स्टैटिक, फिर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो फंक्शन होगा वो। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन का मेमोरी क्रिएट हो रहा है? इसका। इसलिए देखो, ऑब्जेक्ट बनने से पहले ये कॉल हो जाएगा, इसको जरूरत नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की। ग्लोबल फंक्शन बन रहा है। तो अगर वैसा सिचुएशन आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जहां पे आप फंस रहे हो कि अब ऑब्जेक्ट का लिमिटेशन आ रहा है, जैसे प्रीवियस वाले प्रोग्राम में हो रहा था, ऑब्जेक्ट का लिमिटेशन आ रहा था, तो वैसे फंक्शंस जिसको कहीं भी कॉल करना है तो उस फंक्शंस को क्या डिफाइन कर देंगे? स्टैटिक। तो जब आप किसी फंक्शन को स्टैटिक डिफाइन कर देते हो तो वो फंक्शन क्या बन जाता है? ग्लोबल। और जब एक फंक्शन ग्लोबल बन गया तो ये वाला फंक्शन कहीं भी डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है। देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट। How we can make a function global? So for this we have to use a decorator. So static method is a decorator. इस फंक्शन को डेकोरेट किया गया है, डिजाइन किया गया है, ग्लोबल बनाया गया है इसको। तो फंक्शंस को ग्लोबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेकोरेटर यूज किया एंड द नेम ऑफ दिस डेकोरेटर इज स्टैटिक मेथड। तो जैसे ही मैं किसी भी फंक्शन के पहले @स्टैटिक मेथड लगा दूंगा, वो फंक्शन क्लास के अंदर है लेकिन ग्लोबल है। इसको कॉल होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, राइट? तो टाइप ऑफ फंक्शंस में स्टैटिक भी एक तरह का फंक्शन है। टाइप ऑफ फंक्शंस हम लोग पढ़े थे ना, पैरामीटराइज था, विदाउट पैरामीटर्स था, बिल्ट इन फंक्शंस था। तो ऐसे ही एक फंक्शन है स्टैटिक। So static is what? It's a global function. There is no need of object to call this functionality. तो मैं बस लिख रहा हूं a डॉट हेलो, देखो कॉल हो गया। तो इसको वर्क करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। तो जहां पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रूल्स नहीं काम कर रहा है और आपको वो फंक्शन चाहिए, तो उस केस में उस फंक्शन को क्या डिफाइन कर दो? स्टैटिक। तो ऑब्जेक्ट का लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। अब इसको कॉल होने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट कहीं भी आप कॉल कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू राइट क्लास नेम एंड मेथड नेम, दैट्स इट, राइट?